شکر گزار ہوں آج کے خوبصورت وقت کے لیے اور اس دن کے لیے جب اس نے موقع دیا ہے کہ ہم خدا کے زندہ کلام کی سچائیوں کو سیکھ سکیں اور اپنی رہنمائی کے لیے خدا کے زندہ کلام پر جو ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ بڑے جلالی طور پہ کام کرتا ہے. میرے عزیزو، خدا کا کلام جو ہے وہ ہر دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور ہمیں وہ جو ہے وہ ہمارے انر کو بھی ہمارے انر کو بھی ٹرینڈ کرتا ہے اور ہمیں یہ قوت دیتا ہے. یہ ڈیفینسو طور پہ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکیں اور اس کے تمام تر حملوں کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کینسل کر سکیں، اس کے تمام تر اٹیکس کو جو ہے وہ ہم منصوبوں کو جو ہے وہ کینسل کر سکیں. تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ بڑا وفادار خدا ہے. خدا جو ہے وہ ہمیشہ اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے. تو میرے عزیزو، آج میں آپ کو چند باتیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسپرچول وارفیئر جو ہے وہ ایک ریئلٹی ہے، وہ ایک حقیقت ہے. جب ہم مسیحی زندگی کے اندر ہیں تو ہم جو ہے وہ اس جنگ کے جو ہے وہ حالت جنگ میں رہتے ہیں اور ہمیں یہ فائٹ کرنی پڑتی ہے. میں شکر گزاری کرتا ہوں خدا کی کہ اس نے یہ موقع دیا ہے کہ یہ بہت ہی خاص ٹاپک ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم سیکھ سکتے ہیں. کئی دفعہ اس کے اوپر پہلے بھی بات کی گئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی اس بات کو سیکھے، اس بات کی اہمیت کو جانے کہ جو روحانی جنگ ہے وہ ایک ریئلٹی ہے. آپ اس کو لڑیں یا نہ لڑیں، آپ اس کے لیے کھڑے ہوں یا نہ کھڑے ہوں، لیکن وہ جنگ جو ہے وہ جاری ہے، وہ کنٹینیو ہے اور ابلیس ہمیشہ اس جنگ میں آپ کے اگینسٹ کام کر رہا ہے، آپ کے خاندانوں کے اگینسٹ کام کر رہا ہے، آپ کی زندگیوں کے اگینسٹ کام کر رہا ہے اور آپ کی کمیونٹی کے اگینسٹ، خدا کے لوگوں کے اگینسٹ، چرچ کے اگینسٹ، کلیسیا کے اگینسٹ وہ ہمیشہ جنگ کے لیے جو ہے وہ ریڈی ہے اور جنگ کر رہا ہے. میرے عزیزو، اس لیے لازم ہے کہ مسیحی جو ہیں وہ کیا کریں اس جنگ کو، کیونکہ یہ جنگ جو ہے وہ کن کے خلاف ہے؟ یہ کوئی گوشت اور خون کی جنگ نہیں ہے میرے عزیزو، بلکہ یہ ایک روحانی جنگ ہے جو روحانی طریقوں سے لڑی جاتی ہے اور روحانی فوجوں سے لڑی جاتی ہے جو آسمانی مقاموں پر ہے. میرے عزیزو، ابلیس کے یہ وہ سپاہی ہیں، ابلیس کے یہ وہ فرشتے ہیں جو آسمان سے گرائے گئے تھے. یہ جو ہے وہ فالن اینجلز ہیں، یہ بدروہیں ہیں، یہ تاثیریں ہیں، نیگیٹو ابلیس کی تاثیریں ہیں جن کو وہ استعمال کرتا ہے تاکہ کیا کریں؟ ایمانداروں کے خلاف لڑیں، جنگ لڑیں. کیونکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے وہ شیر ببر کی طرح کیا کرتا ہے؟ دھاڑتا پھرتا ہے تاکہ کسی کو پھاڑ کھائے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اس کے ہاتھ لگ سکتا ہے. یہ نہیں کہ شیطان جو ہے ابلیس کسی کا دوست ہے، کسی کا رشتہ دار ہے، کسی کا بھائی ہے، ایسا نہیں ہے میرے عزیزو. جس سے وہ چاہتا ہے پھاڑ کھاتا ہے اور ہر کسی کے اوپر اٹیک کرتا ہے، بے شک کوئی اس کے ساتھ ہو، بے شک کوئی اس کا ساتھی ہو، بے شک کوئی نہ بھی ساتھی ہو. تو میرے عزیزو، وہ سب کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور ہر کسی کو نقصان پہنچاتا ہے. اس لیے آئیے ہم خدا کے زندہ کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے سیکھتے ہیں کہ جب ہم اس روحانی جنگ کے عالم میں ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. خدا کا کلام ہمیں کس طرح رہنمائی کرتا ہے، خدا کا پاک روح ہماری کس طرح مدد کرتا ہے. میرے عزیزو، یہ جنگ جو ہے وہ ہمیں خدا کے طریقوں کے ساتھ لڑنی پڑتی ہے اور خدا کے دیے ہوئے قوت کے ساتھ، یعنی ہولی اسپرٹ کی پاور کے ساتھ اور خدا کے کلام کے ساتھ اور ان تمام روحانی ہتھیاروں کے ساتھ جنہیں ہم خدا کے ہتھیار کہتے ہیں. آئیے ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھ لیجئے. افسیوں کے نام لکھا گیا پالوس رسول کا خط، اس کا 6واں باب ہے، اس کی 10ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک ہے. ہاللیلویہ. افسیوں کے نام لکھا گیا پالوس رسول کا خط، اس کا 6واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک ہم پڑھیں گے. اب میں سے کوئی بھی بہن بھائی جس نے حوالہ نکالا ہے وہ پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے. اپنا مائک میوٹ کر کے. غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو. کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو
ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान किसी पर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और नजात का खोद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नगा दुआ किया करो। पाक कलाम के पढ़े और सुनने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. मेरे अजीजों, यहाँ पर अभी हमने पढ़ा, ब्रदर ने बड़े खूबसूरत तलावत की और उन्होंने इस बात को, ये जो आयतें हैं बड़े वाज़े तौर पे उनको पढ़ा। लिखा है गर्ज खुदावंद में उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। और ये पहली बात है कि हमें खुदा में मजबूत बनने की जरूरत है। अपने तौर पे नहीं, अपने ऊपर बिलीव नहीं करना कि मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझूं, बल्कि किसमें मजबूत बनना है? खुदावंद में मेरे अजीजों, यानी खुदा की स्ट्रेंथ के ऊपर, खुदा की कुव्वत के ऊपर भरोसा करते हुए, पाक रूह की कुव्वत के ऊपर, पाक रूह की पावर के ऊपर, रूहुल कुद्दस की कुदरत के ऊपर भरोसा करते हुए हमें उसमें क्या करना है? मजबूत बनना है। और खुदा के क्या करना है? सब हथियार बांधने हैं ताकि इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सके। मेरे अजीजों, अगर वो हथियार हम नहीं बांधेंगे तो हम कायम नहीं रह सकेंगे। आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर कोई फौजी जंग पे जाता है, सिपाही जंग पे जाता है, तो क्या करता है कि वो सबसे पहले अपने हथियार क्या करता है? लगाता है। उसके पास जो है वो सारे हथियार होते हैं। और पालूस रसूल जब ये बात वाजे कर रहा है, यहाँ पर लिख रहा है रूहानी हथियारों को, रूहानी जंग की बात करते हुए, तो वो अपने सामने जो है एक रोमी सिपाही को रखते हुए लिखता है कि रोमी सिपाही जब जंग के लिए जाते हैं तो उनको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। इसी तौर पे मेरे अजीजों, रूहानी जब जंग है तो उसके अंदर भी रूहानी हथियार चाहिए। और वो रूहानी हथियार जो हैं वो हमें, उनको खुदा के हथियार भी कहा जाता है, ताकि हम इब्लीस के खिलाफ लड़ सके। ये जिस्मानी जंग नहीं है, इसलिए यहाँ कोई जिस्मानी हथियार, ना कोई गन, ना कोई तलवार, ना कोई क्लशनकोफ, नथिंग, कोई भी हथियार जो जिस्मानी है यहाँ काम नहीं कर सकता, उसकी कोई वैल्यू नहीं। सिर्फ और सिर्फ रूहानी हथियार। और अगर आप मुसल्ला हैं रूहानी हथियार से, तो तभी आप कायम रह सकेंगे, तभी आप इब्लीस का मुकाबला कर सकेंगे, तभी आप खड़े होकर उसके सामने जंग कर सकेंगे। अगर आपके पास ये हथियार नहीं है तो आप क्या होंगे? उसके मुकाबला में खड़े नहीं रह सकेंगे। यहाँ लिखा है कि इब्लीस जब आपके अगेंस्ट मंसूबे बनाएगा, जब आपके अगेंस्ट जंग का ऐलान करेगा, और कर चुका है ऑलरेडी, तो उस वक्त आपके लिए खड़ा रहना नामुमकिन होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप तैयार नहीं है, अगर आपके पास खुदा के दिए हुए हथियार नहीं है, यानी रूहानी हथियार अगर आपके पास नहीं है, तो आप कायम नहीं रह सकेंगे। क्योंकि ये जंग जो है ना तो खून की जंग है और ना ही गोश्त की जंग है मेरे अजीजों, बल्कि ये किसके खिलाफ है? हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और दुनिया की तारीकी के हाकिम और शरारत की उन रूहानी फौजों के जो क्या है? आसमानी मकामों में हैं। मेरे अजीजों, ये गिराए हुए खुदा वो फरिश्ते हैं जो इब्लीस के साथ थे, जो इब्लीस के साथ थे। हम जानते हैं कि 1/3 जो फरिश्ते थे इब्लीस के साथ जमीन पे गिरा दिए गए थे। अब आगे क्या लिखा है? नसीहत करते हुए पौलुस रसूल चर्च को, कलीसिया को, मसीहियों को क्या कहते हैं? इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार क्या करो? बांध लो, ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। मेरे अजीजों, हम तभी सब काम अंजाम दे पाएंगे जब हमारे पास हथियार होंगे। हम तभी कायम रह सकेंगे जब हम इस रूहानी जंग को जो है एक्टिवली तौर पे लड़ेंगे, जब हम इसके अंदर जो है वो बकायदा तौर पर रेडी होकर लड़ेंगे। अगर हम सुस्त रवि से लड़ें तो हम जीत नहीं पाते। आज बहुत सारे खानदान, बहुत सारी फैमिलियां ऐसी हैं जो रूहानी जंग के अंदर हार रही हैं, दुख उठा रही हैं इब्लीस के हाथों। क्यों?
क्योंकि वो रूहानी हथियारों को इस्तेमाल नहीं करते, वो खुदा के कलाम पे भरोसा नहीं करते, वो खुदा के दिए हुए हथियारों को नहीं लेते, बल्कि क्या करते हैं, जादूगरों के पीछे और कई ऐसे लोगों के पीछे जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, उनका उल्टा उसकी वजह से क्या होता है, नुकसान होता है मेरे चीजों। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो जंग है, आप जब जंग की हालत में हैं तो आपको यू मस्ट हैव टू फाइट, आपको अच्छे तरीके से फाइट करनी है, आपको जो है वो प्रॉपर तौर पे जंग लड़नी है और इब्लीस का मुकाबला करना है। अगर आप लड़ेंगे तो आप जरूर जीतेंगे, क्योंकि खुदा ने आपको कुदरत दी है, खुदा ने आपको हथियार दिए, खुदा ने आपको पाखरू दिया है ताकि आप इब्लीस के खिलाफ लड़ें। अब आगे उन हथियारों की बात है। आइए मैं थोड़ा सा हथियारों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा ताकि हम समझ सकें कि वो हथियार कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे जी, बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर। किससे जी? सच्चाई से। पीस ऑफ आर्मर यहां पर जो है वो कौन सा है? बेल्ट है। और बेल्ट मेरे जीजो क्या करता है, ये हमारी कमर को यानी हमारी रीढ़ की हड्डी को क्या करता है? सपोर्ट करता है। ये हमें जो है वो यहां से मजबूत करता है कमर से, ताकि हम मजबूती के साथ खड़े रहें, ताकि हम जो है वो इधर उधर यहां वहां जो है वो डावाडोल ना हो, बल्कि क्या करें, मजबूती के साथ खड़े रहें। ये बेल्ट है और इसका अमल क्या है? सच्चाई के साथ। ठीक है जी, इंग्लिश में इसको कहते हैं बेल्ट ऑफ ट्रुथ, यानी सच्चाई से हमें क्या करनी है? अपनी कमर कसनी है। मेरे जीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इब्लीस जो है वो झूठा है। बाइबल में लिखा है इब्लीस झूठा है और वो झूठों का बाप है। इब्लीस झूठ का सहारा लेता है और यहां तक कभी झूठ बोलता है कि कई दफा जो बरगजीदा है, कई दफा ईमानदार जो है वो झूठ को, जो इब्लीस का झूठ होता है, उसको सच समझने लग जाते हैं। लेकिन मेरे जीजों, वो झूठा है इब्लीस, और वो झूठ से जो है वो इंसान के ऊपर अटैक करता है। ये उसका काम है झूठ, ये उसका फल है झूठ। झूठ, फरेब और इल्जाम लगाना, ये 3 चीजें पर्टिकुलरली इब्लीस से रिलेटेड है और ये उसके फल है, इसलिए वो झूठ का सहारा लेता है। बागे अदन में भी उसने झूठ का सहारा लिया जब उनको गिराया, बुजुर्ग अम्मा हवा को और बाबे आदम को जब वो गिरे, जब गुनाह में गिरे, जब नाफरमानी का गुनाह उनसे हुआ, तो वो झूठ का सहारा इब्लीस ने लिया, क्योंकि खुदा ने कहा था जिस रोज तुमने फल खाया तुम मर जाओगे, लेकिन उसने कहा तुम हरगिज नहीं मरोगे, बल्कि तुम किसकी मानद हो जाओगे? खुदा की मानद हो जाओगे। क्या वो खुदा की मानद हो गए? नहीं मेरे जीजों, वो खुदा की मानद नहीं हो सके, बल्कि वो उस म्यार से, खुदा के स्टैंडर्ड से वो नीचे आ गए, क्योंकि उन्होंने गुनाह किया। उनकी अथॉरिटी जो है वो जाती रही, इब्लीस ने उनसे अथॉरिटी छीन ली। खुदा का प्लान एटर्निटी का था कि ताकि इंसान हमेशा अब्दियत में रहे, खुदा की प्रेजेंस में रहे, लेकिन खुदा की प्रेजेंस से निकल गए, क्योंकि इब्लीस ने क्या किया? झूठ बोला। आज भी इसी तरह वो खुदा के लोगों के पास आता है और झूठ लेके आता है उनके पास, और कई दफा इतना वो झूठ बोलता है कि इंसान गुमान करने लगता है कि शायद ये सच है। लेकिन मेरे जीजों, खुदा की सच्चाई को, अगर आपके पास खुदा की सच्चाई है तो आपको पहचान होगी। कई दफा वो झूठे बंदों की सूरत में आपके सामने आ जाता है, झूठे लोगों की सूरत में आपके सामने आ जाता है, और झूठे लोग आपको खुदा की सच्ची तालीम से हटा देते हैं, जो खुदा की सच्चाई है उससे हटा देते हैं। यानी आप का बिलीव जो है वो खुदा से हट जाता है, इंसान का बिलीव खुदा से हट जाता है, और इब्लीस के हाथों वो जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इब्लीस उसे झूठ बोलता है, इब्लीस उसे ऐसी चीजें दिखाता है, इब्लीस उसे दुनियादारी की तरफ लेके जाता है और दिखाता है कि दुनिया ही सब कुछ है, आज की जो लाइफ है यही सब कुछ है। मेरे जीजों, ये झूठ है। जो एटर्नल लाइफ है, जो अब्दी लाइफ है, जो अब्दी बादशाहत है, वो यीशु मसीह की है। इसलिए यीशु ने कहा सबसे पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी। यीशु को उसने क्या कहा? मैं तुझे दुनिया की बादशाहत दे दूंगा अगर तू मुझे सजदा कर दे, मैं तुझे सारा कंट्रोल दे दूंगा अगर तू मुझे सजदा कर दे। मेरे चीजों,
यीशु मसीह के साथ भी वो झूठ बोल रहा है। अगर वो यीशु के साथ झूठ बोल रहा है तो क्या मेरे और आपके साथ झूठ नहीं बोल सकता? पहली बात ये है, आपको खुदा की सच्चाई पे कायम रहना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है सच्चाई, फजल और सच्चाई किसकी मार्फत आया है? यीशु मसीह की मार्फत आया है। और हमें उस सच्चाई पे कायम रहना है, और वो सच्चाई ये है कि खुदा का बेटा इस दुनिया में आया ताकि बनी नौ इंसान का कफारा दे, और उसकी जिंदगी जो है, हालेलुया, ताकि उसकी जिंदगी खुदा के जिंदा कलाम के मुताबिक गुजर सके। इसी तरह मेरे अजीजों, दूसरा जो हथियार है वो बॉडी आर्मर है, और बॉडी आर्मर है ब्रेस्ट प्लेट कहा जाता है उसे, यानी चेस्ट को कवर करने के लिए वो रास्तबाजी का बख्तर लगाना। रास्तबाजी का बख्तर का मतलब यह है कि ब्रेस्ट प्लेट, यानी ये जो चेस्ट का एरिया है, इसमें क्या चीजें कवर की जाती हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका हार्ट, आपका दिल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर जो कवर किया जाता है। मेरे चीजों, इब्लीस क्या करता है? जब वो इंसान पे अटैक करता है तो सबसे पहले उसके दिल के ऊपर अटैक करता है, और दिल के अंदर वो ऐसी चीजें डालता है, ऐसे वसवसे डालता है, ऐसे ख्याल डालता है, ऐसी सोचें डालता है, ऐसे इमोशंस उसके अंदर क्रिएट कर देता है, उसकी अपनी खुददारी के हवाले से, घमंड के हवाले से, गुरूर के हवाले से, कई तरह की दुनिया की जो है वो लस्ट, लालच, और उसके फिर ट्रस्ट के हवाले से। यीशु ने यह बात कही कि जो कुछ इंसान के दिल से निकलता है वो उसे नापाक करता है, यानी जो कुछ उसके मुंह से निकलता है उसके दिल में से आ रहा हो। बाहर से कोई चीज इंसान को नापाक नहीं करती, बल्कि जो कुछ दिल से निकलता है। तो मेरे चीजों, ये कवरिंग है, ये आपका डिफेंसिव जो है वो हथियार है, जो आपको बचाता है कि इब्लीस आपके दिल में ऐसे चीजें ना डाले, ऐसे ख्यालात ना डाले, ऐसी बातें ना डाले जो आपको खुदा से दूर ले जाए, जो आपको रूहानी जंग में फेल कर दे। इसलिए मेरे चीजों, ये लगाया जाता है बख्तर, ताकि आपका सीना, ताकि आपका दिल जो है वो महफूज रहे, ताकि उसकी प्रोटेक्शन रहे, ताकि उसको जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए, और इस बात को वाज़ेह कर दिया जाए कि हमारा ट्रस्ट खुदा पे है और वो हमसे प्यार करता है। क्योंकि कई दफा इब्लीस दिल में ये ख्याल डाल देता है कि खुदा आपसे प्यार नहीं करता, आप खुदा की नजर में गिर चुके, आप खुदा से दूर हैं, खुदा जो है वो आपसे नफरत करता है, खुदा जो है वो गुनाहगार से नफरत करता है। मेरे अजीजों, खुदा गुनाह से नफरत करता है, गुनाहगार से नफरत नहीं करता। क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं गुनाहगारों के लिए आया हूं, मसीह इसीलिए आया है ताकि गुनाहगारों को बचाए, नजात दे। तो मेरे अजीजों, केयरफुल रहें, इस बात का ध्यान रखें कि हमें अपने दिल की हिफाजत कैसे करनी है। मिसाल की किताब पढ़े, वहां पे बहुत सारी बातें इसके ताल्लुक से लिखी गई। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू फॉदर। इसी तरह मेरे अजीजों, आगे बढ़े तो तीसरा हथियार जो है वो, तीसरा हथियार कौन सा है रूहानी? वो हमारा क्या है जी? पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के क्या करके? जूते पहनकर। पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर, यानी शूज जो हैं वो किस चीज के हैं? सुलह की तैयारी के। मेरे अजीजों, ये सुलह की तैयारी क्या है? ये कैसे आती है? ये खुशखबरी सुनाने से आती है। और इब्लीस ये थॉट दिल में डालता है कि खुशखबरी सुनाना ये बेकार काम है, आप क्यों खुशखबरी दूसरों को सुना रहे? और ये एक बड़ा टास्क है, आपकी जरूरत नहीं है, आप तो बहुत छोटे हैं। आप तो आज यूं समझे कि आपको तो गाना भी नहीं आता, आपको तो वर्शिप करनी नहीं आती, आपको तो दुआ करनी नहीं आती। आप कैसे लोगों को खुदा का कलाम सुना सकते हैं? आप कैसे लोगों के पास जाएंगे खुदा की खुशखबरी को लेकर? आपको तो खुद कलाम की कोई बात पता नहीं, आप कैसे जाएंगे? मेरे जिसो, ये वो ऐसी बातें हैं जो आपके दिल में डालता है, और फिर क्या होता है?
کہ انسان جو ہے وہ خدا کی گوسپل کو پروکلیم نہیں کر سکتا, دوسروں تک لے کے نہیں جا سکتا, کیونکہ مسیح نے کیا حکم دیا تھا؟ یسوع نے کہا دنیا کے کونے کونے تک, یعنی دنیا کی انتہا تک تمہیں کیا کرنا ہے؟ خوشخبری کو لے کے جانا ہے ساری قوموں کے پاس. لیکن ابلیس کا جھوٹ بولتا ہے, ابلیس کہتا ہے کہ نہیں, آپ اس قابل نہیں ہیں, آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ کو تو دعا کرنی بھی نہیں آتی, آپ کے پاس تو لفظ ہی نہیں ہے, آپ کے پاس تو الفاظ ہی نہیں, آپ نے تو کبھی دعا کی نہیں ہے, آج کیسے آپ کریں گے دعا؟ اگر آپ دعا کریں گے تو لوگ آپ پہ ہنسیں گے, لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے. یہ باتیں وہ کہہ کر کیا کرتا ہے؟ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے. لیکن صلح کے جوتے دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو موٹیویٹ کرے خدا, آپ کی موٹیویشن بنے کہ آپ خدا کی خوشخبری جو ہے بڑی دلیری کے ساتھ, جس طرح شاگردوں نے کی, انہوں نے پاک روح کو ریسیو کیا, اور یہی وہ شاگرد تھے جو ڈرتے تھے, لیکن جیسے ہی روح القدس ملا اس کے بعد بڑی دلیری کے ساتھ انہوں نے پوری دنیا میں خدا کی انجیل کی منادی کی. آج یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر ہے. ہمیں خدا صلح کی خوشخبری کے جوتے اس لیے پہناتا ہے تاکہ کیا کرے؟ ہم خوشخبری کو دوسروں تک لے کے جائیں. جو کچلے ہوئے ہیں, جو گناہ کی حالت میں ہیں, جو ابھی تک خدا سے دور ہیں, جو ابھی تک اپنے آپ کو کنڈم کیا ہوا سمجھ رہے ہیں, جو ابھی تک سمجھتے ہیں کہ ہم رد کیے ہوئے ہیں, لیکن میرے عزیزو خدا کی خوشخبری کیا ہے؟ کیونکہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آمین. یہ خدا کا پلان ہے کہ ہر ایک زندگی, ہر ایک روح جو ہے وہ توبہ تک اس کی نوبت پہنچے. یہ ہے خدا کا پلان, یہ ہے خدا کی محبت کہ اس نے اپنا بیٹا اس جہان میں بھیجا, اور اس کی خوشخبری, اس کی منسٹری کو لے کے ہمیں آگے جانا ہے. اور جو صلح کے جوتے ہیں, کیونکہ خدا اور انسان کے درمیان نفرت کی دیوار تھی, اور یہ صلح کے جوتے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں وہ صلح جو مسیح, جو خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ کی ہے مسیح کے وسیلہ سے, ہمیں اس صلح کو لے کے ان تک پہنچنا ہے, اس خوشخبری کو لے کے ان تک پہنچنا ہے. تو اس سے اگلا ہتھیار ہے شیلڈ, اور ان سب کے اوپر ایمان کی سپر لگا کر, سپر شیلڈ کو کہتے ہیں, کیا کر کے؟ سپر لگا کر میرے عزیزو, جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو کیا کر سکو؟ بجا سکو. رومی سپاہی جب شیلڈ لگاتے تھے تو میرے عزیزو یہ شیلڈ پانی سے, یہ لیدر کی ہوتی تھی اور پانی سے تر ہوتی تھی, تاکہ جب تیر جو تھے, چونکہ ان کے آگے آگ ہوتی تھی تو وہ آگ کو پکڑتے نہیں بلکہ آگ کیا ہوتی تھی؟ بجھ جاتی تھی. یہاں پر ہم کیا سیکھتے ہیں کہ ابلیس جو ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے, اٹیک کس چیز کے کرتا ہے؟ اس کے تیر کس کس چیز کے ہیں؟ انسلٹ نمبر 1 پہ. آپ اپنے آپ کو گرا ہوا سمجھتے, آپ شرمندگی کے ڈر سے آگے نہیں بڑھ پاتے, آپ محسوس کرتے ہیں کہ کسی طور سے آپ کی زندگی میں کبھی کچھ ہوا اور وہ آپ کے لیے شرمندگی کا باعث بنا, اور اس شرمندگی کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کے اندر کسی ایسی چیز نے جو ہے وہ اپنا مقام بنا لیا اور اس کی وجہ سے آپ شرمندگی کے عالم میں رہے. اس کے بعد وہ پیچھے کی طرف دھکیلتا ہے, سیٹ بیک کرتا ہے کہ کوئی انسان آگے کی طرف نہ بڑھے, اور کئی طرح کی آزمائشیں لے کے آتا ہے. میرے عزیزو یہ وہ تیر ہیں جو انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے, لیکن اگر آپ نے ایمان کی سپر لگائی ہوئی ہے, ایمان جو ہے وہ کلام میں لکھا ہوا ہے بغیر ایمان لائے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے تو آپ کبھی بھی خدا کو خوش نہیں کر سکتے. میرے عزیزو ایمان کی سپر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ ایمان میں کھڑے ہیں تو آپ اپنی شرمندگی کی پرواہ نہیں کریں گے, آپ کسی انسلٹ کی پرواہ نہیں کریں گے, آپ آزمائشوں کے آگے کھڑے ہو جائیں گے, ڈٹ کر ان کا مقابلہ کریں گے, چاہے وہ جتنے مرضی تیر آپ کے اوپر پھینکے, آپ کو پیچھے وہ نہیں دھکیل سکے گا, کیونکہ فیتھ جو ہے یہ آپ کو قائم رکھے گا. یسوع مسیح نے بھی پترس کے لیے دعا کی اور اسے کہا, میں نے ابلیس نے تم کو مانگ لیا کہ تاکہ تمہیں پٹکے, لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی تاکہ تیرا ایمان نہ جاتا رہے, تاکہ تیرا ایمان قائم رہے. جب تو رجوع لائے تو بھائیوں کو, دوسروں کو اپنے ساتھ کیا کرنا؟ مضبوط کرنا. میرے عزیزو اگر آج آپ فیتھ کی سپ پر لگائے ہوئے ہیں تو آپ دوسرے بہن بھائیوں کو
जो स्लाइड बैक कर चुके हैं, जो पीछे की तरफ चले गए हैं, जो रुक चुके हैं, गिर चुके हैं, आप उनकी मदद करके उनको उठा खड़ा करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया हुआ है? आर्मर ऑफ गॉड जो है वो लिया हुआ है। आपने खुदा के हथियार लिए हुए हैं ताकि आप इब्लीस के तीरों को, जो वो जलते हुए तीर आपके ऊपर फेंक रहा है, आप उनको कैंसिल कर रहे हो। आप ईमान की सिपर के वसीला से उनको जो है उसके सारे अटैक्स को, सारे जो उसके मंसूबे हैं, सारे जितने भी वो आपके ऊपर अटैक कर रहा है, उसको आप कैंसिल कर रहे हो। तभी आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, तभी आप कंटिन्यू रहेंगे, तभी आप विक्ट्री को हासिल करेंगे जब आप उसके चलते हुए सारे तीरों को बचाएंगे। किसी भी तौर से वो आपके ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन आप उसका मुकाबला करते हुए उसके सारे हथियार, सारे तीरों को जो है वो कैंसिल कर देंगे, सारे उसके मंसूबे और हरबे जो है वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। उससे अगला पॉइंट है मेरे अजीजों, हेलमेट ऑफ सल्वेशन, नजात का खौज जिसे कहा जाता है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारे सर को प्रोटेक्ट करता है। मेरे अजीजों, सबसे बड़ी बैटलफील्ड जो है रूहानी जंग के अंदर, वो कौन सी है? वो हमारा ज़हन है। और ज़हन को क्या करता है? इब्लीस का काम है सबसे पहले कंट्रोल करना। ऐसे ख्याल, ऐसी सोचें, ऐसे जो है वो ऐसी बातें माइंड में डालना ताकि इंसान क्या हो सके? अपने फोकस से हट जाए। इब्लीस यही चाहता है कि इंसान का फोकस हटे, और वो क्या करता है? उसके माइंड के ऊपर ऐसी चीजें ले आता है, ऐसे ख्याल ले आता है। कई दफा इंसान खुदा पे डाउट करने लग जाता है कि वाकई खुदा है भी या नहीं है, खुदा की रियलिटी कुछ है भी या नहीं है, क्या खुदा की सच्चाइयां हैं भी या नहीं है। जब हम आते हैं तो हमारी निजात कंफर्म हो जाती है। जो हेलमेट है ये हमारे जहन को बचाता है कि हम खुदा के ऊपर डाउट ना करें, हम खुदा के किए गए इस बड़े काम के ऊपर डाउट ना करें, यानी निजात के काम के ऊपर हम डाउट ना करें। आपको पता है कि शक की बिना पर जब वहां पे बुजुर्ग आदम और अम्मा हवा ने शक किया, उसी की वजह से वो गिर गए, उन्होंने खुदा की बात पे यकीन ना किया। यहां पर हम जानते हैं कि मसीह ने मेरा और आपका फिदिया दिया है। इब्लीस के सर को उसने कुचल दिया है। इब्लीस झूठा है, इब्लीस को उसने जो है वो अपने पांव के नीचे कुचला है, और अब वो सर नहीं उठा सकता। लेकिन अक्सर वो माइंड में ऐसे ख्याल डाल देता है कि खुदा के वजूद का लोग इनकार करना शुरू कर देते हैं, डाउटफुल हो जाते हैं कि वाकई ही हकीकत में खुदा है भी या नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें नजात का खौज दिया है, सल्वेशन का खौज दिया गया है, यानी हेलमेट ऑफ सल्वेशन दिया गया है ताकि हमारा जहन बचा रहे, ताकि हमारा जहन जो है वो इब्लीस के प्लानिंग और इब्लीस के ख्यालों से दूर रहे, बचा रहे, ताकि हम मसीह में कायम रहे, खुदा के किए गए प्लान के मुताबिक हम उसमें हमेशा कायम रहें और बढ़ते रहें। और उसके बाद अगला हथियार है रूह की तलवार, जो खुदा का कलाम है मेरे अजीजों, स्वॉर्ड, वर्ड ऑफ गॉड। खुदा का कलाम जो है ये एक ऐसा वेपन है जो ऑफेंसिव वेपन है। बाकी सारे जो वेपन है वो डिफेंसिव है, उसमें आप डिफेंस कर रहे हैं, उसमें आप अपनी बॉडी को बचा रहे हैं, अपने बदन को बचा रहे हैं। रूहानी जंग में कुछ ऐसी चीजें हैं जो डिफेंसिव है, लेकिन तलवार जो है ये ऑफेंसिव है। ये क्या करती है मेरे अजीजों? जंग के दौरान आप दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, और खुदा का कलाम यही है। यीशु मसीह ने इसी को कलाम को इस्तेमाल किया। जब इब्लीस ने यीशु के ऊपर अटैक किया, यीशु को कहा कि ये फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए, इसी तरह उसने कहा मैं तुझे सारी दौलत दूंगा, मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे वो दूंगा, तू मुझे सजदा कर दे। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु ने कलाम के मुताबिक उसे जवाब दिया, यानी कलाम की तलवार से उसका मुकाबला किया। आज मुझे और आपको भी कलाम की तलवार से मुकाबला करने की जरूरत है, और कलाम तभी हमारे अंदर आएगा जब हम इसे पढ़ते हैं, जब हम इसके ऊपर मेडिटेट करते हैं, जब हम इसके ऊपर सोच विचार करते हैं, जब इस कलाम को रोजाना हम पढ़ते हैं, रोजाना अपनी खुराक इसमें से लेते हैं, तो मेरे अजीजों तभी हम इस काबिल होंगे कि हम इब्लीस का मुकाबला ऑफेंसिव वार के तौर पे कर सके, हम उसके ऊपर अटैक करें। और आप जानते हैं कि डिफेंस और अटैक दोनों ही जरूरी है।
हमें अपना डिफेंस करना है ताकि हम अपने आप को कंट्रोल रखें, लेकिन दूसरे नंबर पे हमें अटैक करना है, ऑफेंसिव होना है, ताकि हम इब्लीस का जो है वो मुकाबला कर सकें। और ये खुदा का जिंदा कलाम है जो हमें सिखाता है, ये खुदा का कलाम है जो इब्लीस के सारे कामों को खत्म करता है, नेस्तो नाबूद करता है। और उसके बाद 18वीं आयत में लिखा है, और हर वक्त हर तरह से क्या करें, रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ करें। मेरे अजीजों, ये हमारा सबसे अव्वलीन काम है कि हम हमेशा दूसरे मुकद्दसों के लिए दुआ करते रहें। ये हमारी स्पिरिचुअल वॉरफेयर जो है, ये हमारे जो वॉरियर हैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर, ये वो उस जंग में लड़ रहे होते हैं। दुआ के दौरान अपने घुटनों के ऊपर जाकर वो क्या करते हैं, इस जंग के लिए दूसरों के लिए रखनों में खड़े होते हैं और लड़ते हैं इब्लीस के साथ, इब्लीस की तासीरों के साथ, ताकि इब्लीस को शर्मिंदा करें, ताकि इब्लीस के कामों को मिटाएं, ताकि इब्लीस के मंसूबों को फेल करें। अगर आज आप खुदा के हथियार लिए हुए हैं तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, कलाम ये बात कहता है कि आप इब्लीस का मुकाबला करेंगे और उसके सामने कायम भी रहेंगे। अगर हथियार नहीं है तो मेरे अजीजों डाउट है कि आप शायद उसका मुकाबला ना कर पाए। हो सकता है इब्लीस आपके ऊपर हावी हो जाए, पर अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक उसके सारे हथियारों को बांधे हुए हैं तो यह मुमकिन नहीं कि इब्लीस आपकी जिंदगी का कंट्रोल ले ले, इब्लीस आपको शर्मिंदा करे, इब्लीस आपसे जंग जीत जाए। ये कभी नहीं हो सकता। अगर आप खुदा के हथियारों के को लिए हुए हैं, अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इब्लीस आपका मुकाबला नहीं करेगा। कलाम हमें सिखाता है कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा, शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, उससे डरने की बजाय आप ईमान के साथ खड़े हो, खुदा के हथियारों को लीजिए। हो सकता है आपके माइंड में वो कई तरह के ख्याल डालता है, हो सकता है कई तरह की डर की सोचें आपके माइंड में डाल देता है, स्पिरिट ऑफ फियर जो है वो आपके ऊपर ले आता है। लेकिन मेरे अजीजों, पाक रूह दलेरी का रूह है, हर तरह का डर और खौफ यीशु के नाम से जाता रहता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपके घरानों को बरकत दे इस कलाम के वसीला से। गॉड ब्लेस यू।